Good evening, students. So let me quickly brief you with the solutions. In the first assignment 1, question 1, first part, two numbers were getting divided, and because there is, like in the rule of multiplication, if there is one minus sign, we put the minus sign in the answer. But in division also, if there is one minus sign, the minus sign will come in the answer. You can write this division in the form of fraction. Just do the cutting work. You got 18 as the answer, you will put minus sign because one minus sign is there. Second part, what I have done is I have multiplied 12 and 11. My answer came this because I was multiplying these two, one minus sign was there, so minus sign came. Okay, so minus 132 into minus 10. Now I multiplied these two minus sign were there, so answer will come in plus. Now students, in question number 1 we were not supposed to use any properties. In question number 2, using properties you were supposed to solve these two parts. First part, let's see. Students, I cannot simply multiply. This is a simple multiplication question, but had it been in this question, I would have simply multiplied. But it is there in this question number 2. Okay. So in question number 2, I have to make use of property. So what I will try to do is, I tell you the number which is near 100, I will try to break that. 100 or 1000 or 10. Okay. I can break this as 100 plus 3. Okay. So minus 41 into 100 plus 3. You remember that we used to make that trick, na? Guest property. There is a guest outside the house. It will meet this member. It will meet this member. Like that only we will do. Minus 41 into 100. I wrote. Then in between sign is the plus sign. Plus. Minus 41 into 3. So this minus 41 gets multiplied to this 100 also. And this minus 41 gets multiplied to this 3 also. So minus 41 into 3. Minus 41 into 100. Minus 4100. Plus sign as it is. Minus 41 into 3. Minus 123. Open the bracket, plus minus becomes minus, because the signs are the same signs, we will add them, add kara bache, and because the bigger number is having minus sign, we'll put a minus sign. Okay, now in this question what I saw, there was this question. Okay, it is involving a multiplication sign also and addition sign also. Okay, because it is a combination of two signs, one which property will come in my mind? Distributive property only. Here we have just done the opposite of that property. Here we will do the opposite. Like the properties are same, but it is going in this order, and this will go in reverse order. Okay, so what are we going to do is, we will try to find out the number which is common. Like we will try to find out the guest, who's the guest. Here it is 625, but here it is minus 625. So I told you during the explanation also that we can shift a minus sign. Like if two numbers are getting multiplied, if minus sign is with this number, I can shift it to this number like I did here. Okay, why am I shifting? Just to find out the same number. Here it was minus 625, here was 625. So I actually made them kind of same only. Okay, so I shifted this minus sign here. I could also have done this, students, कि मैं ये वाला minus sign मैं 65 को दे देती, तो ये plus 65 बन जाता, तो ये भी 625 होता, ये भी plus 625 होता, तो हम इसको common ले लेते और minus 35 और minus 65 को we would have put in the bracket. But here I have just shifted the minus sign here. Here minus 625, here this step as it is. So minus 625 I am now taking common into minus 625 into minus 625 into. If I take common from both, what is left inside the bracket? 35 plus middle sign, then 65. I'll add them, 100 will come, minus 625 into 100 is minus 62500 using distributive property. Now students, comes to the third question, which was simplify. In this question what was there was, this is a line bracket, we'll solve this first. आप ध्यान से देखो, ये माइनस साइन के ऊपर लाइन ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ 3 माइनस 6 पे है. अगर आप 3 माइनस 6 रफ कॉलम में कर लो बच्चे, because the signs of 3, not, don't think that 3 is having it's minus 3. The line bracket is only on 3, means without the sign. So plus 3 and minus 6 answer will come minus 3 only. So I have wrote a minus 3. I should have written in the bracket, but just for your explanation I have just written like this. This minus sign is away. This minus 3 I have written. So now 9 minus minus 3, you know it will become plus in the next step. So 9 plus 3 is 12. Okay. So now it will be what? 11 minus 7 minus 5 minus 3 into 12. Why there is no sign? So it means they are getting multiplied. So 3 into 12 is what? 36. Minus 3 into 12 is minus 36. Okay. So now if you see this curly bracket is there to solve 5 minus 36, answer will come minus 31. Rest of the thing as it is. Now 11 minus 7 minus minus 31. अब बच्चे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है बाहर मल्टीप्लाई करने के लिए, सिर्फ एक माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. ओके, सो दिस इज प्लस 31. ओके, सो नेक्स्ट विल बी व्हाट? 11 minus 7 plus 31 is what? This will be 38. Because outside a minus sign was there, minus sign just came like this. This we have just added. 11 minus 38 will give you minus 27, students. Okay, let me flip to the next question. Okay, in this, students, they were saying that in a competition 5, you can have a, your question paper in front of you. 5 marks are given for every correct answer and minus 2 marks are given for every incorrect answer. Okay, so marks given for correct answer, एक आंसर सही होता है तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 5.
और मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए, गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स कट जाएंगे? -2, मतलब -2 मिलेंगे। अब कह रहे हैं टोटल स्कोर ऑफ अंजना इज 30। ओके, दे आर सेइंग इन द फर्स्ट पार्ट अंजना स्कोर 30 मार्क्स, उसके 30 मार्क्स आए, तो टोटल स्कोर ऑफ अंजना कितना हुआ? 30। इफ शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन शी आंसर्ड इनकरेक्टली? 30 तो उसका स्कोर बना है। 30 स्कोर जब उसका बना है बच्चे, उसने 10 करेक्ट आंसर्स करे थे। तो 10 करेक्ट अगर आंसर्स करें तो अब हम क्या करेंगे? 10 करेक्ट आंसर्स की वजह से उसके मार्क्स कितने बने थे? टोटल उसके 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है, जिसमें से उसने 10 करेक्ट करे थे। जब उसने 10 करेक्ट करे थे तो उसके मार्क्स कितने बनते हैं? 10 इंटू 5, क्योंकि 1 करेक्ट आंसर करने के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 10 करेक्ट करने के लिए कितने मिलेंगे? 10 5 इज 50। ओके, तो बट उसके मार्क्स 50 नहीं बने बच्चे, उसके मार्क्स तो टोटल 30 आए हैं। इट मीन्स उसके 50 में से कुछ मार्क्स कट हुए हैं। कितने कट हुए हैं? हाउ विल बी फाइंड आउट? देयर इज अ वे आउट। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? टोटल माइनस दिस। जैसे जैसे मैंने आपको बोला है, ए 2 नंबर्स का सम है, लाइक 2 नंबर्स का सम है 5, एक नंबर उसमें से 2 है, दूसरा क्या होगा? आप क्या बोलते हो मैम? 3 होगा। वो 3 आप कैसे निकालते हो? 5 में से 2 को माइनस करते हो, टोटल में से इसको माइनस करते हो, तो यहाँ पर बच्चे टोटल 30 है। 30 में से एक फर्स्ट स्कोर को माइनस करोगे, सेकंड का अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि करेक्ट वाले आंसर्स का स्कोर और इनकरेक्ट वाले आंसर्स का स्कोर हमें मिला के कितना बनाएगा? 30 बनाएगा। तो ये टोटल है बेटा, ये टोटल है ये वाला, ठीक है, ये टोटल है। टोटल में से आपने 1 को माइनस करा, अदर वैल्यू आ जाएगी, तो 30 में से -50 करें, ये मत सोचना 50 बड़ा है। 30 इज अ टोटल थिंग माइनस द अदर थिंग, यू विल गेट -20 एज योर आंसर। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स उसके कितने बन रहे हैं? -20 बन रहे हैं। तभी तो तुम अगर 50 में से -20 करोगे तभी तो 30 आएगा, ठीक है। तो आप 50 में से 20 नहीं बोलोगे, 50 में से -20 की वजह से 30 आ रहा है, नॉट 20 की वजह से। सो यू विल राइट डाउन नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, क्योंकि बच्चे उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा था कि करेक्ट आंसर्स की वजह से कितने मार्क्स बन रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ ये बोला था 10 करेक्ट आंसर्स हैं, बताओ इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने कितने करे थे। तो अभी इनकरेक्ट आंसर्स की वजह से उसके -20 मार्क्स बन रहे थे, बट उन्होंने हमसे पूछा ही है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने क्वेश्चन उसने गलत करे हैं। जैसे करेक्ट तो 10 करे हैं, गलत कितने करे हैं? जो भी इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर बना है, टोटल कितना इनकरेक्ट आंसर्स का स्कोर है? -20, और 1 इनकरेक्ट आंसर का स्कोर कितना है? -2। तो -20 अपॉन -2 टोटल डिवाइडेड बाय वॉट एवर इज ऑफ 1। इनकरेक्ट का टोटल स्कोर -20 और 1 इनकरेक्ट का स्कोर कितना है? -2। इफ वी डिवाइड विल गेट 10। So for explanation of the second part, let's see this. Rajan got 4 correct answers, ठीक है। Okay, now if he scored -12 marks in the competition, how many questions he answered incorrectly? इसमें भी ये पूछ रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस गलत करे थे, इनकरेक्ट कितने थे। उसका टोटल स्कोर इसमें कितना बन रहा है? -12। जैसे उसका इसमें 30 बना था, -12 बनने का मतलब आप समझते हो कि उसने रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा करे, तभी उसके माइनस में मार्क्स आ रहे हैं। और उसने बोला था 4 करेक्ट आंसर्स करें, तो अब हम क्या करेंगे? बस ये ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी कि 4 आंसर्स करेक्ट करें और टोटल इज -12 मार्क्स। सो मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स कितना बनेगा? अगर उसने 4 आंसर्स करेक्ट करे हैं तो 4 5 क्या होता है? 20। इतना 20 मार्क्स बना। अब उसके मगर टोटल मार्क्स तो -12 आ रहे हैं, इसका मतलब उसके जो नेगेटिव मार्क्स कट हुए हैं वो ज़्यादा हैं, तभी तो -12 बना है। तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, आपको जो 1 का पता है, अदर आप कैसे निकालते हो? टोटल में से इसको माइनस करके, टोटल कितना था? -12। उसमें से माइनस करेंगे इस वाली वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था। टोटल कितना था? 30 में से माइनस करा था करेक्ट वाले को, माइनस का साइन लगा के आंसर -20 आ गया। वैसे यहाँ पे टोटल क्या था? -12 लिखा, और 1 का क्या था? 20, तो -20 करा। अपने आप बताओ, आप हम कर तो सब्ट्रैक्ट रहे थे, बट ऑटोमेटिकली क्योंकि साइन सेम था तो ये ऐड हो गया, -32 केम। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? इनकरेक्ट की वजह से स्कोर कितना बनना है बेटा? -32, और 1 इनकरेक्ट का कितना स्कोर है? -2। सो आंसर केम 16। एंड दिस इज बेटा द सोल्यूशन फॉर द डिसेंडिंग ऑर्डर। यू कैन सी descending is big to small. This is the smallest integer. This I told you. Write a pair of integers whose difference is -5. पहले तो आपको 2 ब्रैकेट्स बनाने हैं, माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि डिफरेंस बोल रहे हैं। सम बोलेंगे तो प्लस का लगाएंगे, -5 आना चाहिए। अब आप सोचोगे, वैल्यूज डालोगे, आप ये पेंसिल से कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, आपका रफ वर्क है। रफ वर्क करने के बाद आप अपना आंसर लिखोगे, ठीक है। लेट मी टेक एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिया यहाँ पर मेरे को पता है 5 कैसे आता है, 7 और 2 को माइनस करने से आता है। 7 - 2 करा मैंने। अब देखते हैं, 7 ओपन करो ब्रैकेट, 7 लिखा, -2 लिखा, आंसर कितना आ गया? 5। पर मुझे तो -5 चाहिए था। इसका मतलब मेरा आंसर -5 कब आएगा? जब ये बड़ा वाला नंबर के साथ माइनस साइन होगा। तो मैंने इसको कट कर दिया। अब मैंने क्या करा? फिर से माइनस साइन लगाया, 2 ब्रैकेट्स बनाए। अब देखते हैं, मैंने स्वैप कर दिया, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर लिखा 7। अब ब्रैकेट ओपन करा, 2 - 7 का आंसर आ गया -5। तो ये वाला करेक्ट है। तो ये तो मेरा आंसर तो करेक्ट आ गया, मेरे को -5 तो मिल गया। बट हाउ विल आई राइट? पेयर इज इक्वल टू, जो आपने ब्रैकेट के अंदर बेटा वैल्यूज डाली होती हैं वो लिखना है, 2, 7, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। मे बी आपने -7 लिया होता तो हो जाता 2 + 7 विच इज गिविंग यू 9। बट यहाँ पर आपने माइनस नहीं लिया था, यहाँ पर आपने प्लस लिया था। ओके, सो 2, 7 इज योर आंसर, नॉट 2, -7।
तो आप ये सॉल्व करके फिर आप पेयर के लिए आंसर कंक्लूड करोगे. अगर सम होता है तो बेटा यू विल मेक प्लस साइन. सॉल्व इट एंड फाइंड आउट. ओके, सो असाइनमेंट 1 इज डिस्कस्ड. आई विल नाउ गिव यू द सॉल्यूशन फॉर असाइनमेंट 2.